डिसिप्लिन इज़ वन थिंग जो बहुत बोरिंग है और बहुत ही एक रेजिमेंटेड चीज़ है। तो इट्स द मोस्ट बोरिंग एस्पेक्ट। देयर इज नथिंग, देयर इज नो पार्टीज आफ्टर लाइक आप सोना मनाए एक आप तो 10 बजे के बाद मैं 10 बजे सो जाता हूँ, लाइट्स ऑफ उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे सुबह। और एक होता है वेट ट्रेनिंग का, कार्डियोवास्कुलर, मैं वही खाना खाता हूँ रोज़। मेरा कोई वेरिएशन नहीं होता है खाने में। तो एग्जैक्टली फ्रॉम योर एक्सप्रेशन इज लाइक व्हाई वुड समवन वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस। खाने के सपने आने बंद हो गए क्योंकि मैं एनीवेज एक फूडी नहीं हूँ। मैं शायद पहले हुआ करता था जब हाईली डिसिप्लिन था, लेकिन अभी मेरे जो एक सेट रेजिमेंटेड चीज़ होता है खाने का, सेम चीज़ खाता हूँ लंच के लिए, सेम चीज़ खाता हूँ डिनर के लिए, एंड द सेम थिंग फॉर ब्रेकफास्ट। आई कीप सेइंग दिस, इफ आई एम अंडररेटेड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद रेटिंग्स। हाय, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं रेडियो मिर्ची से हूँ। और मेरे साथ में एक ऐसे इंसान है जो वैसे तो सीनियर है लेकिन उनको सर कहने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अगर मैं सर कहूँगी तो मैं आई एम इंसल्टिंग हिज एवर इटर्नल यूथ। सो कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द मैन कॉल्ड इमरान हाशमी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और ये भी सिखाया है कि कैसे अपने आप को अडेप्ट करते रहना चाहिए। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इमरान। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। ग्राउंड जीरो इज रिसीविंग द काइंड ऑफ अक्लेम इट शुड रिसीव। 25 अप्रैल को हम इसे थिएटर्स में भी देखने वाले हैं। But I've got 20 questions, very quick ones. You're supposed to choose, pick whatever comes to your head first. Serial kisser या silent killer? Serial kisser. Your most underrated film? Avarapan. Actually, not underrated. Actually, people like it a lot. Yeah. Ghan Chakkar. Ground Zero in one word? Unbelievable. Avarapan या Gangster, which is the one closer to your heart? Avarapan. Last role that broke you emotionally? Troll. Last role. Role. Actually, last troll. Trolls don't break you, Imran. Yeah, but it does for some actors take it very personally. But some actors, I'm talking to you. I don't give a damn. No, that's it. Last role that broke me. Yeah. I think it would be Ground Zero. Yeah. One scene you would never want to shoot again? Oh, one scene. There was a scene in Tumsa Nahi Dekha with my director, maybe do this walk on a flyover at the edge and act drunk. I don't know, it was my third film, like an idiot I went and did it. But when I look back, there was no safety harness or anything. I would have tipped over. So it was just one of those, back in the day, we used to do these kind of guerrilla shoots and without permission and stuff. That's how I worked with that. Thank God we are here alive to watch and see Imran for the next 500 years probably. OTT fame या box office king? OTT? Fame या box office king? Yeah, box office. Yeah. हीरो बनना मुश्किल था या इमेज तोड़ना मुश्किल है? इमेज तोड़ना। बिगेस्ट रिस्क जो आपने लिया अपने जीवन में, अपने करियर में? अपने करियर में बिगेस्ट रिस्क I think would be doing a film like Shanghai that I got a lot of acclaim for. Yeah, it's one of my favorite films of yours. Role जो you wished you never rejected? I don't. I reject roles for a reason. I don't have any regrets with that. एक actor you'd love to be reborn as? Dilip Kumar. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? I at one point wanted to be. I would get into graphics, visual effects in movies. Very fascinated with that. I would be a video game creator. Yeah. Yeah. What kind of, like really assassin type? Assassin's Creed, yeah, all those kind of games. Yeah. Love story or action thriller? I think right now it would be action thriller. Okay. एक डायलॉग जो आप थक चुके हैं अपने फैन से सुनते सुनते? शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही। Method acting या instinct? Instinct. I don't. Method acting. I don't believe that. One rumor about you that was true? They're all true. Who's your, well, इमरान हाशमी सुबह के 3 बजे सो रहे हैं तो not who's your 3 a.m. friend but who's your 9:55 p.m. friend in the industry? I have none actually. Yeah, I have none in the industry. Most powerful co-star जिसके साथ में आपने काम किया है? Most powerful. Most powerful. I think commanding would be Mr. Bachchan. Yeah. Yeah. Craziest fan moment ever? Yeah, lots of them. Your legacy in one line? I don't know.
Legacy is something that's, I don't know, it's a little weird, isn't it? Like after you're dead and gone, you can't enjoy it. So I don't want to leave a legacy. It's all about here and now. I love it. I love that. Thank you. अगर ये फिल्म आपके करियर के शुरुआत में आई होती जी. तो कितना डिफरेंट हुआ होता इमरान हाशमी का करियर? आई थिंक एक बहुत ही क्रेडिबल स्टार्ट होती. नॉट दैट मेरा स्टार्ट क्रेडिबल नहीं था. आई थिंक फुटपाथ भी एक तरह से बहुत ही वाइडली रिसीव्ड और लोगों को बहुत पसंद आई थी तभी. और बहुत सही समय होता जी. क्योंकि ये ऑपरेशन हुआ था. एक्चुअली नहीं होता क्योंकि 30 अगस्त को ये ऑपरेशनल एनकाउंटर हुआ था और मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त 2003 में. तो थोड़ा सा हम 15 दिन थोड़ा चूक गए जी. अगर अगले साल स्क्रिप्टिंग के साथ होता तो आई वुड डेफिनेटली बड़ा मज़ा आता. क्योंकि इसके साथ साथ जहाँ पे एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे इमोशंस हैं, ड्रामा है, लेकिन एक सच्ची कहानी पे ये बेस्ड है, वो किसी भी एक्टर के लिए. बट मुझे नहीं लगता उस वक्त कहीं एक वो मेच्योरिटी लेवल थी मेरी. इस किस्म के कैरेक्टर के लिए, इसके न्यूएंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस आपको मिले सिनेमा में, ताकि आप एक ऐसे किरदार को निभाएं जो एक ट्रूथ और ऑनेस्टी में बेस्ड है. करेक्ट. ये जो फिल्म है रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी है. इसे प्ले करते वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है? आई थिंक दोनों होती हैं. डेफिनेटली एक प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है. क्योंकि एक तो प्रेशर ये होता है कि आप किसी की जीवित ज़िंदगी को आप बड़े पर्दे पर दर्शा रहे हैं. जी. तो ये एक ऐसी चीज़ होती है सिनेमा जो पोस्टेरिटी के लिए होती है. इट्स फॉर एवर. आप जब स्क्रीन पर डालते हैं आर्काइव्स में रहता है. और पहली चीज़ तो वो पूरी फैमिली उस फिल्म को देखने वाली है. या. वो शख्स उस फिल्म को देखने वाले हैं, दुबे जी. और मेरा ये पहला यही था कि ऑडियंस से पहले मैं इनकी फैमिली और इनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ. और जब उन्होंने मुझे इंडोर्स किया और कहा कि अच्छा परफॉर्मेंस था, और हम तो ऐसा था कि वी रीलिविंग द मोमेंट्स जो हुआ था 2003 में, वो एक तरह से मेरे लिए वैलिडेशन था. राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप एक BSF जो फोर्स है उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए. आई डोंट थिंक कोई फिल्म बनी है BSF पे. आर्मी फिल्म्स बनी है, लेकिन एक ऐसे फोर्स पे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उनका हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी में. जी. और एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है मीडिया में, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, प्रॉब्ली सरफेस लेवल पे. लेकिन इसके जो डिटेल्स हैं जब लोग जानेंगे तो दे विल बी इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी. तो वो चीज़ कहना वो एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर चीज़ को एक, अगर आप फिल्म में 100% काम करें इसमें, दैट इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट मोर रिसर्च. छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई थी तभी, क्योंकि एक एरा बेस्ड फिल्म है 2001-2003 के बीच. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. डेफिनेटली. आपने खुद के किस इमोशन के साथ सबसे ज़्यादा फाइट किया व्हाइल यू वर प्लेइंग दुबे जी's कैरेक्टर एंड जो आप किरदार निभा रहे थे ग्राउंड ज़ीरो में? आई थिंक एक स्टॉइकिज्म जो एक चीज़ होती है जो शायद ज़्यादातर मर्द हम कंडीशनिंग होती है हमारी कि जो हम फील करते हैं अंदर से, जो महसूस करते हैं, अगर हम टूट चुके हैं अंदर से, जो एक टर्बुलेंट और एक तूफ़ान भी चल रहा है अंदर अपने दिमाग में और दिल में, वो कभी हम दिखाते नहीं दुनिया को. और वो भी एक सोल्जर की जर्नी होती है. क्योंकि एक्सटीरियर एक सोल्जर का वही होता है, एक प्रोटेक्टर का. वो अगर कहीं एक्सटीरियर लेवल पे आपको दिखे कि वो एक तरह से क्रम्बल हो रहे हैं, जी. तो वो इंस्टिल नहीं करता है आपके आम जनता में वो कॉन्फिडेंस. तो जैसे हमारी प्रोमो में ही दिखाया है कि एक, मैं ज़्यादा उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि क्या मोमेंट्स हैं फिल्म में, लेकिन वो एक, जब गाना शुरू होता है आप देखते हैं कि नरेंद्र अपने सीनियर के साथ बात कर रहा है और एक आंसू टपकता है. तो एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है. एक ऐसा हादसा हुआ है इसकी ज़िंदगी में जहाँ पे इट ब्रिम्स अप, लेकिन वो रो नहीं सकता है. वो टूट जाता है अपनी बीवी के सामने जहाँ पे वो रोने लगता है. तो वो चीज़ें आई थिंक वो एक बहुत ही एक टाइट रोप वॉक था जहाँ पे उसको दर्शाना बहुत ज़रूरी था इन द राइट वे, टोनैलिटी. राइट. इस फिल्म ने क्या आपके अंदर कुछ ऐसा छेड़ दिया है विच इज़ गोइंग टू प्रोबेबली रिफ्लेक्ट इन एवरी अदर वर्क जो आप आगे करने वाले हैं? आई थिंक इट डिसिप्लिन. क्योंकि जब आप एक ऐसी फिल्म कर रहे हैं तो एक ऑफ कोर्स एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है किसी भी किरदार को निभाने के लिए. लेकिन जब आप इस एक ऐसी दुनिया पे आप फिल्म आधारित आप बना रहे हैं, BSF इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन. जो ऑफिसर्स, उनका जिस तरह उनका उठना बैठना होता है, उनकी जो पूरी एक ज़िंदगी होती है, वो डिसिप्लिन के तौर पे चलती है. और उसको इम्बाइब करना ऑन अनदर लेवल, मुझे लगा कि वो
एक ऐसी फिल्म नहीं है ये कि बस यूनिफॉर्म पहन के आप सेट पे चले जाए, वो दिखेगा नहीं। आपको वो इम्बाइब करना पड़ेगा डिसिप्लिन। पहले से था डिसिप्लिन, मैं रेजिमेंटेड लाइफ थी, लेकिन आई थिंक इस फिल्म के बाद जो मैंने फॉलो किया है वो तो कुछ ज़्यादा ही एक तरह से वेंट इन मोर इन दैट जोन। तो वो चीज़ लेके जाऊँगा मैं, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन। What is the kind of discipline that we're talking about in terms of waking up early, sleeping on time, जिस प्रकार का आप खाना खाते हैं? इट्स वेरी बोरिंग। डिसिप्लिन इज़ वन थिंग जो बहुत बोरिंग है और बहुत ही एक रेजिमेंटेड चीज़ है। तो इट्स द मोस्ट बोरिंग एस्पेक्ट। देयर इज नो पार्टीज आफ्टर, लाइक आप सोना मनाए एक, आप तो 10 बजे के बाद, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, लाइट्स ऑफ, उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे सुबह, और एक होता है वेट ट्रेनिंग का, कार्डियोवास्कुलर, मैं वही खाना खाता हूँ रोज़। मेरा कोई वेरिएशन नहीं होता है खाने में। तो एग्जैक्टली फ्रॉम योर एक्सप्रेशन इज लाइक व्हाई वुड समवन वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस। तो वो एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन एक चीज़ होती है एक्टर्स की भी, नॉट ऑल एक्टर्स बट आई थिंक मोस्ट एक्टर्स, वो एक डिसिप्लिनरी लाइफ आपको लीड करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ टफ प्रोफेशन। एक्सटर्नल्स होते हैं, आपको एक एक्सटीरियर जो होता है आपका अच्छा दिखना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन वहीं से आता है। इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी इनडिसिप्लिन लाइफ, फॉर एग्जांपल अगर आप शूट के लिए उठ रहे हैं 6 बजे, आपका कॉल टाइम 7 बजे है, अगर आप रात के 2 बजे तक जागे हैं तो यू लुक लाइक क्रैप, या, और आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे और वो सीन भी ठीक तरह से नहीं होगा। जी। तो वो आपको इम्बाइब करना पड़ता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं इस प्रोफेशन में, Yeah. एंड दैट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। राइट, बिकॉज आपने इसके बारे में बात किया है, एंड आई विल गेट बैक टू ग्राउंड जीरो। जो इंसान 10 बजे सो जाता है उसको किस प्रकार के सपने आते हैं? खाने के सपने आते हैं या सपने नहीं आते हैं? मैंने तो खाने के सपने आने बंद हो गए मुझे, हो गए, क्योंकि मैं एनीवेज फूडी नहीं हूँ। मैं शायद पहले हुआ करता था जब हाईली डिसिप्लिन था, लेकिन अभी मेरे जो एक सेट रेजिमेंटेड चीज़ होता है खाने का, सेम चीज़ खाता हूँ लंच के लिए, सेम चीज़ खाता हूँ सही, डिनर के सही। लिए, एंड द सेम थिंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो सपने आने बंद हो चुके हैं। तो सपने But आते they're हैं? sweet dreams, yeah, Sweet they're dreams. sweet dreams. They're sweet dreams of discipline, of weight training, What the hell? whey protein, creatine. तो ऐसे सपने आते All हैं। these characters, Yeah, whey yeah, protein talking yeah. to, They're all hey dancing. Imran, I'm They're meeting all you tomorrow boxes of morning. whey protein and creatine dancing. That's adorable. Coming back to ground zero and to your acting, क्या मुझे ऐसा लगता है कि इमरान यू आर स्टिल वेरी वेरी अंडररेटेड। आई वुड लव यू टू डू 1000 फिल्म्स इन अ ईयर, Yeah. ठीक है? आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्री ने आपको अंडररेटेड रखा या फिर आपने अपने आप को अंडरसेल्ड रखा है? I keep saying this. If I'm underrated, there's something wrong with the ratings. या एक sensibility होती है। या I mean, if I don't want to catch anyone by the throat and tell them that okay, you got to accept me in the way that I feel Sure. I should be accepted. श्योर। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की एक तरह काम करने का तरीका है पहले से, और वो हमेशा करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपने फिल्म्स के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए कुछ नया करूँ। ये भी सवाल आता है बार बार कि आप शायद पिछले 4-5 साल में इतनी फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरह पहले हुआ करती थी। और मैं उसके लिए जवाब ये देता हूँ कि स्क्रिप्ट्स जो आजकल पीपल आर राइटिंग, वो उस किस्म की स्क्रिप्ट्स नहीं है जो एक पैन इंडिया एक उसका एक्सपेंस मिले, इसलिए फिल्में नहीं चल रही हैं। तो जब मुझे एक स्पेशल फिल्म मिलती है, वो ऐसी फिल्म मिलती है जो मुझे लगता है कि हर कोई एक शख्स के साथ कनेक्ट कर सकती है, तो मैं फिल्में करता हूँ। आई थिंक रेटिंग्स उससे भी आती हैं जहाँ पे आप थोड़े से अपने खुद को ओवरसेल करते हैं अवार्ड सेरेमनीज़ में। वही एक ज़रिया होता है अभी पब्लिक के लिए, वो देखते हैं और कुछ लोग तो एक ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो एक क्रेडिबल चीज़ है। बट मैंने शुरुआती तौर पे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अवार्ड सेरेमनीज़ में नहीं गया था। राइट। जब आप उसके पीछे का झूठ देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि या तो मैं खुद के डिल्यूजनल स्टेट में जाऊं वहाँ पे और ख़ुद को डिल्यूट करूं कि जो मुझे अवार्ड मिल रहा है ये किसी चीज़ का इस हैज़ सम वैल्यू, बट आपको पता है कि अटेंडेंस पे होता है तो क्यों। सो आई एम वेरी ब्लंटली ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विद द सिचुएशन विद माई सेल्फ। ग्राउंड जीरो का इमरान और मर्डर के इमरान के बीच में जब एक दूसरे के बीच में जब बातें होती तो कौन सी बातें होती हैं आपके हिसाब से? ग्राउंड जीरो के नरेंद्र आई थिंक मर्डर के कैरेक्टर को कहेंगे प्लीज़ ऐसा मत करना, किसी की शादी को मत तोड़ना, या बी सेटल्ड, बी विद दैट वन वाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। Just be ground zero, otherwise you'll be grounded. या वी बी ग्राउंडेड। Yeah, nice. क्या आपको लगता है कि इमरान हाशमी का नाम एक सर्टेन जॉनर से चिपक गया है?
जिससे निकलने में काफ़ी सारे साल लगे हैं, फिर इट्स जस्ट हैपन टू हैपन? नहीं, वो पहले था। ओके। आई थिंक दैट वाज जो एक पर्टिकुलर जॉनर की फिल्में चल रही थी और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं उस चीज़ में स्लीप वॉक कर रहा था। मैं जब अलग अलग फिल्में कर रहा था, एक सेम टोनैलिटी था और वो एक दौर था फिल्मों का जहाँ पे अगर आप एक स्टार हैं, आप एक बॉक्स ऑफिस नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसी चीज़ को आपको बार बार फ्यूल करना है। उसी कैरेक्टर को आप अलग अलग वेरिएशन से प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने और फिल्में चलती हैं। सो कोई रिग्रेट्स नहीं है उस चीज़ के साथ, बट उसका एक टर्म होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है। वो सैचुरेशन पॉइंट मेरी ज़िंदगी में कहीं 2014 में आई। फिर मुझे लगा कि ओके, मुझे इसमें अभी मोल्ड बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक उम्र के आगे चले जाते हैं, 35-40 के आगे, एक नई पीढ़ी आ जाती है। करेक्ट। आपको एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने चाहिए और कुछ ऐसे रोल्स करने चाहिए जो जहाँ पे ऑडियंस को आप दिखाएं कि कुछ और है आप में, कुछ और फैसेट्स हैं। यू नॉट द यूनिडायमेंशनल स्टार थ्रू आउट योर करियर। बहुत सारे ऐसे स्टार्स ख़त्म हो जाते हैं और वो देयर इज़ नथिंग टू री इन्वेंट देन। मुझे लगा कि एक री इन्वेंशन का होना बहुत ज़रूरी था, जो एक हुआ मेरी लाइफ में 2014 के बाद। और ऐसा नहीं है कि थ्रू दोज 10-14 ईयर्स मैंने री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं की है। लोगों ने रेजिस्ट किया है, ट्रेड ने, हमारी इंडस्ट्री ने। जैसे लोगों ने कहा था शांघाई जैसी फिल्म क्यों की है तभी, करेक्ट। बट आई वांटेड टू डू इट क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर पसंद आया था, तो आई डिड इट। I was a little worried about the teeth situation in Shanghai, and I was like, Yeah, but then of the course, pan I mean, stained it's- teeth. Yeah. Yeah. That was a criticism I got from people from the trade. Why? क्यों आपने अपनी खुद की शक्ल बिगाड़ रखी है ऐसे दांतों के साथ? लोग आपको इस तरह देखना नहीं चाहते हैं। बट यू लाइक दैट्स द मोस्ट रिग्रेसिव माइंडसेट। अगर आप एक एक्टर हैं, इज़न्ट इट योर जॉब कि आपको अलग अलग तरह के किरदार निभाने चाहिए स्क्रीन पर, ताकि एक वेरिएशन मिले ऑडियंस को। So would you like to say now that critical acclaim is slightly more appreciated by Imran Hashmi as opposed to box office collection, or is No, it nothing, just- nothing like that. I think बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑडियंस का प्यार, वो हमेशा एक पैरामाउंट Benchmark. चीज़ होती Yeah. है, एक बेंचमार्क होता है। आजकल तो पता नहीं, क्रिटिकल रिव्यूज़ का तो कुछ अलग ही चल रहा है आजकल। सब लोगों को मिल रहे हैं 5 स्टार, तो आपको समझ में नहीं आता है कि किसकी फ़िल्म अच्छी है, किसकी फ़िल्म ख़राब है। तो एक ज़माना था जहाँ पे आप जब पेपर खोलते थे तो वो क्रेडिबल आता था 2 स्टार या 3 स्टार। आज तो पता नहीं कितने क्रिटिकल साइट्स आ गए हैं, कुछ ऐसे 100 आ गए हैं जहाँ पे सबको मिल रहे हैं 4 स्टार, 5 स्टार। everyone's तो a उसकी fantastic actor? या वैल्यू ख़त्म होगी उस चीज़ की, तो आई डोंट थिंक एनीवन रीड्स दैट एनीमोर, Yeah. अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू क्रिटिक्स आई गेस। Yeah. Who's your favorite critic? No Film one. critic? No one. आई हेट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। Is there a friend, a family that you really go up to and say, did I do a good job? And Oh, you're talking about my personal? no, for no. my inner Otherwise, side of also I was people? asking. Yeah. I would say family and friends for sure. Yeah. I think वो उनका भी थोड़ा सा skewed चीज़ रहता है। How about वो Ayan? Is आपको- Ayan cutthroat? Yeah, very, Yeah. very, very, He'll tell you this is not very great. mean. वो अभी 15 साल के हैं। वो एक phase है जहाँ पे they get very vicious. Yeah. तो वो एक suddenly 12 साल के बाद ना they become really vicious. I Daggers. don't know why, it's the hormones जो I think वो चलेगा अगले probably 7-8 साल तक after you deal with this. So they're very, very blunt. But that's amazing. But there's somebody who's blunt in your life. Yeah, Yeah. that's very important. एक grounding मिलती है आपको Sure. उससे। Yeah. Avarapan 2 has been announced और Ground Zero release हो रही है। क्या इमरान हाशमी finally अपनी दोनों extremes एक साथ explore करने वाले हैं? We're excited about that. Of course, I think आवारापन एक quintessential जो कहते हैं, जो एक commercial zone में एक is like a hero and वो सारी चीज़ें, एक revenge का angle है, वो सारी trappings हैं, गानों का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान है, तो वो एक है। और Ground Zero is a little more character based, Yeah. like real life true event film. तो yeah, it's best of both worlds. Yeah. There's this cab which has been introduced in Bangalore which is called the Smooch cab, where the driver People say is smooch in it. Yeah, It's in Bangalore. it's in Bangalore. So it's like it's an app based thing जहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो शटर डाउन कर देंगे, वो अपने कान में ईयरफोन्स लगा लेंगे। What does Imran Hashmi think about One this second, Smooch cab? can you just elaborate on this? He's going So to put the it's- shutter down and it's- people can smooch in the background. I'm a driver. I'm a driver. back Shh, seat. shh. And there's people in the back seat who have sat in the Smooch cab. And they're smooching. And they're smooching because Bangalore has Isn't so much there traffic. some laws for obscenity? Because from last I knew, people used to get caught here next to bandstand and. So it has Park Road. gotten some critical feedback in Yeah. regards with how the hell are you going to do this, But they have etc. tints up over there, But so they've people got, don't know. They've got curtains and the driver's got earphones, etc. What do you think? I hope they don't go beyond smooching. But what do I Interesting. have my take on it? Yeah, of course. I mean, who am I to be the model police?
But you I are mean, you are the brand ambassador. That is why I'm saying this very hypocritical. that मैं आके बोलूं कि ये क्या हो रहा है? Hey, This stop! is really spoiling the fabric of our culture. I spoiled the fabric of our culture back then in 2003. Not anymore. Not anymore. Not anymore, In all regards, also because summers are happening and while Ground Zero देख रहे हैं हम, जहाँ पे हमें हमारे जीवन में, हमारे देश में क्या हुआ था एक समय पर वो पता चलेगा. There's also the season of mangoes. Are you a mango I fan? love it. I had my second mango of the season right now. Yeah. Yeah. Yeah, but you don't even when you're eating the same stuff, you're not like I give depriving myself yourself in. of. I let myself go with this one piece of dessert or what it's high in calories. Yeah. But this is one thing that you need to survive. Right? You need to live. Yeah. Sometimes. Live it up. Sometimes. This is as wild as I go in my life. I have a mango. This is the wildest. This is the wildest I go. I have a mango. अच्छा. Yeah. Oh, This is उस it. मैंगो की क्या This किस्मत is है? beyond the whey proteins and all. That's the mango. The whey proteins are feeling very sad in Yeah, one corner. yeah. Any final message to all the people जो सुन रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको? Why Ground Zero is going to be the best moment on the 25th of April? Well, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो लोग बार-बार इसके बारे में पूछ रहे हैं कि उनको एक ऐसी फिल्म देखनी है जो एक रूटेड फिल्म हो, एक सच्ची कहानी पे आधारित हो, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग हो, ड्रामेटिक हो और इमोशनल हो. उन सारी चीज़ों का एक मिश्रण ग्राउंड ज़ीरो में है और एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में, एनकाउंटर के बारे में जो BSF ने लीड किया, मिस्टर दुबे ने लीड किया 2001 में. और आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप ये भी अमेज जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को पुल ऑफ किया था एनकाउंटर को, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट था. एंड इट्स रिलीज ऑन द 25th of April. Please go check out Ground Zero. Also, Imran, it's been a pleasure talking to you, really. Thank you. Even if these cameras weren't here, I genuinely enjoyed myself. Thank you. And हम देखते रहें इमरान हाशमी को breaking images and doing different things for the rest of our lives. And check out this interview on Mirchi Plus exclusively. Thank you.